Hello everyone, welcome to our channel Full Facts Law and I am Anuj Kumar Singh. In this particular video we will discuss about Criminal Procedure Code of 1973. We will also cover this particular subject side by side with the Evidence Act of 1872. This subject is very crucial in many ways. We will discuss each and everything in detail, each and every topic. Sections will also be covered, chapters, etc., along with the landmark cases relating to this particular code. When we talk about CRPC of 1973, it is basically a procedural law. It enforces the सब्सटेंटिव लॉ दैट इज द इंडियन पीनल कोड. तो सारी के सारे प्रोसीजर दिए गए हैं, कैसे चीज़ें रेगुलेट होंगी, हाउ इन्वेस्टिगेशन विल बी डन, हाउ ट्रायल विल बी डन, हाउ like judgment will be given, and what are the inherent powers of the high court, what is a court of session, what are judicial magistrates, who is chief judicial magistrate, and it also separates executive from the judiciary. So ये कुछ facts हैं which we will discuss in detail. Let me give you a very brief background about the CRPC of 1973. See, when we talk about CRPC, there are 3 to 4 parties which you should be very clear in your mind. First one will be the police or the investigative agency. So police can be the investigative agency, CBI, Enforcement Directorate, etc., etc. In CRPC, the investigation part is very crucial in order to make a particular case. So police role will be very, very crucial when we will study CRPC. The other organ which we will discuss is prosecutor. When we talk about prosecutor, he is a person who represents the victim. He is a agent of the state. So when we talk about criminal cases, in criminal cases, the person against whom an offense has been committed, his or her case will be represented by the state government, that is by the prosecutor, and the accused person, his case will be represented by his own lawyer, which is called as the defense counsel. So prosecutor's role will be very, very crucial. That is why in the introductory video I have said that if you are preparing for the judicial service examinations, or if you have done your 5-year or 3-year law courses, also fill the form of APO. He is only considered as the APO. The promotions we will discuss in detail afterwards, but his post is also very, very important and very, very prestigious. So please kindly fill the form of APO of each and every state which comes. So prosecutor's role we will discuss in detail. The other thing will be the magistrates. So as I have told you, like the session judge, the session court we will discuss in detail. Then chief judicial magistrate first class, judicial magistrate second class, special judicial magistrate. These magistrates we will discuss in detail. Basically there is a hierarchy of court which is given in CRPC, that how a case will be processed, what will be the procedure. So each and everything we will discuss in detail. So please be very, very clear that how a criminal case is started and what is its final outcome. All these things will be given in CRPC. CRPC doesn't define an offense. An offense is defined in IPC. CRPC only provides how to enforce the substantive law. So enforcement part is covered by CRPC. Now when we talk about CRPC, it came into force on 1st of April 1974. तो April 1, 1974 में CRPC को हम फोर्स में लाया गया. The most
crucial aspect of CRPC 1973 is separation of judiciary from the executive. It is basically an obligation which is given in the Constitution of India 1950 as well, to kindly separate the executive organ from the judicial organ in order to have transparency, and so that the judiciary is independent in our society. So when we talk about CRPC, how it has done how it has separated executive from judiciary? By bifurcating the magistrates. Basically, CRPC bifurcates those who are called as judicial magistrates in different cell, and those who are executive magistrates under different cell. So bifurcation has been done, that is the difference has been created by CRPC, that investigation part will be done by the executive magistrate and the judicial part will be done by the judicial magistrate. So each and every function has been clearly allotted to the magistrate. तो उससे क्या होगा? इंटरफियरेंस नहीं होगा, इंटरमिंगलिंग नहीं होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डालेंगे. दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल कि एग्जीक्यूटिव जो हो वो अलग हो जुडिशरी से, ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बरकरार रहे. अ लॉट ऑफ केसेस में हम अभी डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे जुडिशरी ने कई केसेस में अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित किया है, और कई बार दे हैव बेसिकली लेड डाउन सर्टेन गाइडलाइंस टू स्टॉप द इंटरफियरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव. तो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पूरी तरीके से डिफाइंड है सेक्शन 20 ऑफ सीआरपीसी. वी विल डिस्कस इन डिटेल. जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब हम बात करते हैं 13, 14, 15 सेक्शन से, उनकी चीजें एक एक चीजें डिफाइंड है. तो ये चीज हम लोग जब व्हेन वी विल डू इन डिटेल, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. व्हेन द सीआरपीसी वाज फॉर्मुलेटेड, द मेन एम was that an accused person should get a fair trial. accused person वो होता है जिसने कोई पर्टिकुलर क्राइम कमिट किया है अंडर आईपीसी या और अंडर एनी अदर स्पेशल एक्ट. तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई क्रिमिनल एक्ट कमिट करता है तो उसको अक्यूज्ड कहा जाता है, और सीआरपीसी ये कहता है कि अक्यूज को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए. दैट इज ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ही शुड बी गिवन अ लॉयर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. तो फेयर ट्रायल होना बहुत ज़रूरी है. केस लॉस अभी बहुत लेटेस्ट हैं, हम डिटरमाइन करेंगे कि क्या उस आदमी को फेयर ट्रायल मिला कि नहीं मिला, वो अलग बात है. दूसरी चीज़, डिले नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में. ऐसा जब सीआरपीसी बन रहा था तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ही सीआरपीसी बना कि देयर शुड बी अवॉइडेंस ऑफ डिले इन इन्वेस्टिगेशन. जब हम बात करेंगे अभी, जब सेक्शन 168 जब आगे आगे पढ़ते रहेंगे, सेक्शन 162 जब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में जाएंगे, उसमें सीधे सीधे अलॉटमेंट दिया गया है 60 डेज और 90 डेज का. तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि 90 डेज के अंदर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, 60 डेज के अंदर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए. तो वो चीज़ें वी विल डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन डिले होता है तो जस्टिस मिलने में देरी होती है. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. दैट इज अ वेरी वेरी frequent notion which we use. So इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी हो जाना ही बेटर होता है हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए. तीसरा है, पुअर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड प्रॉपरली. उनको भी एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत उनको भी हमें कवर करना चाहिए सीआरपीसी के अंडर में. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट पुअर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू हायर अ लॉयर. दैट इज द रीजन व्हाई लीगल एड सेल्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय वर्च्यू ऑफ सीआरपीसी ओनली. सो वो चीज़ भी कवर होनी चाहिए, ऐसा सीआरपीसी 1973 कहता है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका प्रियम्बल क्या है, उसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे, उसको समझेंगे इन कॉन्टेक्स्ट विद सीआरपीसी. तो प्रियम्बल वही जो था जो एविडेंस एक्ट में था, कंसोलिडेट प्लस अमेंड. तो वॉट एवर एक्ट्स वर इन एग्जिस्टेंस रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर बिफोर 1973, दे ऑल आर कंसोलिडेटेड एंड नाउ वन सीआरपीसी ऑफ 1973 हैज बीन इन एग्जिस्टेंस. सो पुराने जितने एक्ट हैं वो सबको कंसोलिडेट करके 1973 का एक्ट बनाया गया है. दूसरा है अमेंड. मैंने पहले बताया था, बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनी प्रोविजन कैन बी ऑल्टर्ड, कैन बी चेंज्ड, कैन बी रिपील्ड, कैन बी एडेड एक्सेट्रा.
तो वो भी मुमकिन है बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी विल डिस्कस्ड इन डिटेल। सो ये चीज़ें आपको प्रीएम्बल समझ में आ जाना चाहिए होगा। अब हम बात करेंगे जब सेक्शन 1 के बारे में, वेरी वेरी क्रूशियल सेक्शन। As I have told you, by virtue of Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019, now CRPC is also applicable to the state of Jammu and Kashmir as well. पर जब हम सेक्शन 1 की बात करेंगे उसमें कुछ जगहों पे CRPC is excluded, which we will discuss in detail. So when we talk about section 1, it says CRPC is applicable to the whole of India, but CRPC does not apply to the state of Nagaland and to tribal areas. तो अब CRPC कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है? नागालैंड में नहीं होता है और ट्राइबल एरियाज में नहीं होता है। दो चीज तो पहले आप समझ लीजिए कि नागालैंड और ट्राइबल एरियाज ये एप्लीकेबल नहीं होता है। पर एक इसमें एक प्रोवाइसो है कि जो चैप्टर 8, 10 और 11 है ऑफ सीआरपीसी का, वो इन दोनों जगहों पे एप्लीकेबल होगा। तो चैप्टर 8, 10 एंड 11 ऑफ सीआरपीसी विल बी एप्लीकेबल इन नागालैंड एंड इन ट्राइबल एरियाज, क्योंकि ये पीस और ट्रांक्विलिटी के चैप्टर्स हैं। तो ये कहा गया है कि सीआरपीसी के अदर प्रोविजंस यहाँ नहीं एप्लीकेबल होंगे, पर चैप्टर 8, 10 एंड 11 ऑफ सीआरपीसी नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में यू शुड बी वेरी क्लियर। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे नागालैंड की या ट्राइबल एरियाज की, तो बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन दे कैन अप्लाई एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी टू the whole state or to certain areas of the state. So state government has been given full liberty to apply the provisions of CRPC as per their discretion by issuing a notification. तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, चाहे तो पूरा CRPC, चाहे तो कुछ प्रोविजन ऑफ द CRPC को अपने यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जैसे हम जब बात करते हैं ट्राइबल एरियाज कौन कौन सी होती हैं, मेंशन किया गया है। जैसे जो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है विच वी विल डिस्कस इन डिटेल, उसमें ट्राइबल एरियाज के बारे में ही जिक्र किया गया है। तो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रखते हुए ट्राइबल एरियाज को हम डिटरमाइन करेंगे। टेरिटरीज बिफोर 21 जनवरी 1992 वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। वो चीज़ें जो टेरिटरीज 21 जनवरी 1972 से पहले इंक्लूड हो गई हैं आसाम में, वही क्या होगा, ट्राइबल एरियाज माना जाएगा। और टेरिटरीज विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलांग एक्सक्लूडेड है। तो शिलांग की म्यूनिसिपैलिटी में जो टेरिटरीज हैं वो ट्राइबल एरियाज नहीं होती हैं। ट्राइबल एरिया कौन होती हैं? जो आसाम में इंक्लूड हो गई हैं बिफोर 21 जनवरी 1972। So I think so this introductory part is clear। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कैसे कुछ कुछ terminologies we have to define so that you are very clear about what cognizable offenses, what non-cognizable offenses, what is a judicial proceeding, what is a bailable offense, what is a non-bailable offense, because these terms are very very crucial for the examination point of view and for the purpose of interview as well। तो सबसे पहले जब व्हेन वी टॉक अबाउट डेफिनेशन पार्ट, सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन पार्ट है, जिसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइंड है। सी, परचेज द बेयर एक्ट, रीड इट, बट अंडरस्टैंड नाउ द टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड बाय वर्च्यू ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज देयर आर सर्टेन टर्म्स विच आर नॉट वेरी क्लियरली डिफाइंड इन द बेयर एक्ट। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, hit the bell icon to get the latest updates, subscribe so that our confidence as well as your benefit is also done। So when we talk about section 2 definition part, पहला जो section जो 2A है, section 2A ये डिफाइन करता है what is a bailable offense। अब जैसे बेयर एक्ट की लैंग्वेज में अगर बात करेंगे, बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है। अब क्या है ये? तो बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है वेयर बेल कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं तो आप राइट से बेल को क्लेम कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ गिविंग श्योरिटीज, और कोर्ट
आपको बेल देगा, क्योंकि ये आपकी राइट है। तो जहाँ जहाँ बेल कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, वहाँ वहाँ वो क्या हो जाएगा, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो इतने हीनियस नहीं होते हैं, इतने सीरियस नहीं होते हैं। उन केसेस में बेल आपको मैटर ऑफ राइट के तहत मिल जाएगी। जैसे इन द सुशांत सिंह राजपूत केस, द अक्यूज्ड बेसिकली वाज मतलब she was not convicted, but the charge which was framed against her was under section 27A, which was not bailable. तो उस केस में she does not, or he or she, the accused does not have the right to claim bail. तो उस केस में वो जुडिशियरी की डिस्क्रिशन है कि आपको बेल देंगे कि नहीं देंगे। तो दिस एग्जाम्पल आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो बेलेबल ऑफेंस ये हो गया। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, वो भी इसी में है। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होता है जहां पे आप you cannot claim bail as a matter of right. It depends upon the discretion of the judiciary, or it depends upon the discretion of the court whether to grant you bail or not. जैसे मैंने सुशांत सिंह राजपूत वाला केस बताया था, वहां कोर्ट की डिस्क्रिप्शन हो जाती है, क्योंकि सेक्शन 27A नॉन बेलेबल है। तो कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि इनको बेल देनी चाहिए कि नहीं। लेकिन बेलेबल में क्या होता है, आपको मिलेगी ही मिलेगी। सेक्शन 2C की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं सेक्शन 2C, ये क्या है, इट डिफाइंस कॉग्निजेबल ऑफेंस। व्हाट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस? आप अक्सर सुनते होंगे कि कई कॉग्निजेबल होते हैं, कई नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। तो सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल है और सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल है। तो ये दोनों हम लोग साथ में पढ़ेंगे। 2C में कॉग्निजेबल, 2L में नॉन कॉग्निजेबल। 2C में व्हेन वी टॉक अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होती हैं जिसमें police can start the investigation without the order of the magistrate, and police can arrest without warrant. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहां पे पुलिस अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, और जहां पे पुलिस अरेस्ट भी कर सकती हैं अक्यूज्ड को विदाउट वारंट। तो ये भी बहुत हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, उन्हीं को हम कॉग्निजेबल का दर्जा देते हैं। जनरली, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, जनरली वही 7 साल से ऊपर या उससे कम, तो 5 साल में भी, उसमें भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर ही वो फॉल करता है। लेकिन ऐसा कुछ स्टिपुलेट नहीं है, वो हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन कौन सी चीजें कॉग्निजेबल है, कौन कौन सी नॉन कॉग्निजेबल। जब सेक्शन 2L की बात करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जहां पे आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। कब करोगे, जब मजिस्ट्रेट कंसेंट देगा या ऑर्डर देगा, और आप अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं विदाउट द वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो एकदम उल्टा, कॉग्निजेबल में आप दोनों कर सकते हो, नॉन कॉग्निजेबल में आप दोनों नहीं कर सकते। So by virtue of this point we will move further. अब देखिए, एक टर्म डिफाइंड है सेक्शन 2D में, जिसको हम कहते हैं कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है, तो देखिए, वैसे तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफेंस, वो हम सेक्शन 154 में इन फ्रंट ऑफ द पुलिस के सामने देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पुलिस डू नॉट वांट टू रजिस्टर और इट इज डिलेइंग द प्रोसेस। उस केस में आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जा करके अपना कंप्लेन लिखवा सकते हैं कि देयर इज अ पर्टिकुलर ऑफेंस विच हैज बीन कमिटेड एंड यू शुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो मजिस्ट्रेट के पास आप डायरेक्ट, जो कंप्लेनेंट होता है, मतलब जो कंप्लेन देता है ऑफ द कमीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफेंस, वो आदमी मजिस्ट्रेट के पास जाता है, उसको पूरी इंसिडेंट्स बताता है कि दिस पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट हैज बीन कमिटेड, प्लीज लुक इनटू द मैटर, प्लीज ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो फिर मजिस्ट्रेट उसके बेसिस पे ऑर्डर करता है। तो कंप्लेंट भी काफ़ी क्रूशियल है। ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने देखा, फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ पर्सन डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट अनदर पर्सन, बट आई डोंट रिकॉग्नाइज देम, दे आर अननोन टू मी। At that point also I can go to the magistrate, I can lodge my complaint that there are some unknown persons who are committing a particular offense. उस केस में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो स्टार्ट करेगा और इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कर देगा टू दी पुलिस अथॉरिटीज। तो आई होप दिस पर्टिकुलर कंप्लेंट पार्ट इज क्लियर। पुलिस रिपोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं होती। पुलिस रिपोर्ट क्योंकि क्या होती है, वो सोलली पुलिस करती है। यहाँ पे क्या है, मजिस्ट्रेट इनिशिएट करवाएगा इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ तक हो गया। कुछ पॉइंट्स हैं विच आई वांट टू
clear in your mind that when we talk about the investigation part, it is done only and only by the police एंड बाय सीबीआई और एक्सेट्रा. मतलब पुलिस का ही ये एक तरीके से डिपार्टमेंट है टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन. मजिस्ट्रेट कैनॉट कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशंस सोल पर्पस इज टू कलेक्ट एविडेंस. कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस ही इन्वेस्टिगेशन का सोल एम है और मजिस्ट्रेट कैनॉट डू इन्वेस्टिगेशन बाय हिमसेल्फ. इन्वेस्टिगेशन पार्ट क्लियर है. When we talk about inquiry, अब इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी वो होती है जो ट्रायल नहीं होती. इंक्वायरी मतलब ये होती है कि इन्वेस्टिगेशन हो गया है, अब कॉग्निजेंस ले रहा है. अब कॉग्निजेंस क्या होता है वो हम बताएंगे आपको. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, कॉग्निजेंस लेना है. उस समय जो मजिस्ट्रेट होता है वो इंक्वायर कर सकता है, कुछ विटनेसेस से मिल सकता है ताकि उसको क्लियर हो जाए कि हाँ कोई पर्टिकुलर केस एग्जिस्टेंस में है. कुछ उसके मन में डाउट्स होते हैं तो वो डाउट सॉल्विंग के लिए इंक्वायरी किया जा सकता है. इट इज नॉट मैंडेटरी बट इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल इज मैंडेटरी. इंक्वायरी डिपेंड्स अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. तो इंक्वायरी कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट कर सकते हैं. ट्रायल कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट देमसेल्व्स. ट्रायल कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर. तो ये टर्म्स आर वेरी वेरी क्रूशियल ताकि आपको पता चल सके कि कौन इन्वेस्टिगेशन करता है, कौन क्या करता है. आजकल के समय में जैसे जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो भी कर रही है. वो कैसे कर रही है? चूंकि द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड दैट पर्टिकुलर केस टू द सीबीआई. वरना तो जनरली पुलिस ही करती, तो सीबीआई भी कर सकती क्योंकि उसमें एक टर्म है पुलिस और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट ही होता है. तो पुलिस करे या जिसको ऑथराइज किया जाए. तो सीबीआई हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. दैट इज द रीजन व्हाई दे आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके मन में एकदम क्लियर हो जाने चाहिए ताकि you should know exactly what all activities are done by these functionaries. बड़े important और बड़े अच्छे पोस्ट्स हैं तो प्लीज इस पे फोकस करें. जो भी फॉर्म्स आए इनको भरें ताकि आपकी जो कैरियर है वो एक स्मूथ पाथ पे चलने लगे. अब जैसे मैंने बात की थी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, ये सेक्शन 2I में डिफाइंड है जो मैंने एविडेंस की क्लास में भी बताई थी. सेक्शन 2I जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो प्रोसीडिंग्स होती हैं जहाँ पे एविडेंस इज लीगली टेकन ऑन ओथ. जहाँ पे एविडेंस ओथ पे लिया जाएगा उन प्रोसीडिंग्स को क्या कहा जाएगा? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. अब पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? सेक्शन 2R. सेक्शन 2R में क्या डिफाइंड है? पुलिस रिपोर्ट. सी, इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द पुलिस. They prepare a particular report and they send the report to the magistrate or they forward their report to the magistrate under section 173. मतलब एक तरीके से वो चार्जशीट कहते हैं. जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है जो रिपोर्ट सेंड किया जाता है मजिस्ट्रेट को, उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? चार्जशीट. मतलब वो क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट ही होती है. इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट जाती है उसको क्या कहते हैं? पुलिस रिपोर्ट. उसी पे फिर कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेता है. वो हम बताएंगे कि कॉग्निजेंस क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद ट्रायल कैसे स्टार्ट होता है. वो चीजें विल बी वेरी क्लियर. प्लीज वॉच आवर चैनल. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू. अब आगे की हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन क्या है? पुलिस स्टेशन की भी डेफिनेशन दी गई है. यहाँ ध्यान दीजिएगा. व्हाट ऑल डेफिनेशंस आर गिवन, दे आर टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट. सो सेक्शन 2S. सेक्शन 2S में क्या डिफाइंड है? पुलिस स्टेशन. डेफिनेशन बाय वर्च्यू ऑफ एविडेंस एक्ट स्टेट्स दैट एनी पोस्ट, कोई भी पोस्ट हो या कोई प्लेस हो, डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेसिफिकली बाय स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस को डिक्लेयर कर दे कि ये पुलिस स्टेशन है तो वो पुलिस स्टेशन हो जाएगा. किसी पर्टिकुलर पोस्ट को वो डिक्लेयर कर दे कि ये पुलिस स्टेशन होगा, आज से वो पुलिस स्टेशन मान लिया जाएगा. तो स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन गिवन more and more powers about in order to determine what place is considered as a police station. अब जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल के तरीके से एक छोटा सा ले रहा हूँ कि आफ्टर द एनसीबी हैज गिवन द जुडिशियल कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड, दे क्लियरली स्टेटेड इन देयर जजमेंट दैट टुडे द अक्यूज्ड विल बी इन एनसीबी जेल. तो उस चीज को क्या हो जाएगा? वही एरिया जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया था वो कन्वर्ट हो गया है अब एक तरीके से स्टेशन.
तो इस तरीके ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इट इज़ रेलिवेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, बट ये समझें कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली तो करेगी नहीं। अब क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टली थोड़ी ना वो करते हैं, वो तो अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करके मेन अथॉरिटी, वहाँ पे जो मेन अथॉरिटी उसको दे देते हैं कि आप डिटरमाइन करिए कौन सी एरिया पुलिस स्टेशन होगी। तो ये चीज़ शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। अब जो अगला टर्म है विच इज़ वेरी क्रूशियल, वो टर्म है सेक्शन 2O में दिया है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये जो डेफिनेशन है बहुत क्रूशियल है। जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन दी गई है, इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि हु विल बी द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इस डेफिनेशन में ये मेंशन है कि इफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज नॉट अवेलेबल बाय वर्च्यू ऑफ इलनेस और बाय वर्च्यू ऑफ एनी अनफोर्सिबल सर्कमस्टेंसेस, देन any police officer next in rank will be considered as officer in charge of a police station, but he should not be below the rank of the constable. So I think this particular definition is clear. तो कांस्टेबल से नीचे का आदमी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन नहीं हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? तब हो सकता है जब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे। अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर देती है तो कांस्टेबल से नीचे का आदमी भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो ये डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। सो दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स विच हैव टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट दो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हमारा आज का आखिरी डिस्कशन होगा। ये दो टर्मिनोलॉजीज बहुत क्रूशियल हैं, बिकॉज आगे का जो जब हम वी विल डिस्कस दी ट्रायल प्रोसीडिंग्स और हाउ इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड, दीज टू टर्म्स विल कम इनटू पिक्चर। सो सेक्शन 2W एंड सेक्शन 2X। 2W में डिफाइन किया गया है समन केस, 2X में डिवाइड किया गया है वारंट केस। सो 2W में क्या डिफाइन किया गया है? समन केस। 2X में क्या डिफाइन किया गया है? वारंट केस। When we talk about summon case are those cases which are not warrant cases. ये टर्मिनोलॉजी डिफाइन है इसमें बेयर एक्ट में। तो इसमें तो आपको कुछ समझ में आया नहीं कि क्या है समन केस, क्या है वारंट केस। तो समन केस आर दोज केसेस विच आर नॉट वारंट केसेस। तो अब हमें क्या ढूंढना है? वारंट केस क्या होता है। इफ वी कुड एबल टू एनालाइज व्हाट वारंट केस इज, समन केस विल बी क्लियरली डिसाइडेड। सो 2X में डिफाइंड है वारंट केस। वारंट केसेस आर दोज केसेस वेयर पनिशमेंट इज ऑफ डेथ, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years और मोर। तो जहां जहां ये होगा वहां वहां वो क्या केस हो जाएगा? वारंट केस हो जाएगा। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, डेथ, इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 2 years, अगर ये है तो क्या हो जाएगा? ये वारंट केस हो जाएगा। अगर 2 साल से कम है, डेथ की पनिशमेंट नहीं है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? समन केस। तो समन केस बहुत ही हीनियस नहीं होता है। वो ऑफेंसेस जो बहुत हीनियस नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? समन केस कहते हैं। और जो बहुत हीनियस हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वारंट केस हो जाते हैं। अब जस्ट इमेजिन इफ अ पर्टिकुलर ऑफेंस इज पनिशेबल ऑफ डेथ, it is a very heinous crime, it will be considered as warrant case. If suppose any offense is there whose punishment is only 6 months, that is a summon case. तो 2 साल से exceed हो गया तो warrant case, 2 साल से कम हुआ तो summon case. तो I think so for today's lecture it is like enough. So please go through the Bail Act, read a particular book, watch our videos to get clear understanding about the subject, and do subscribe our channel, hit the bell icon for latest update, and please give your valuable suggestions so that we can improve our quality. Till then, be brave. Jai Hind, Jai Bharat.